So when we uh, join the data horizontally from a multiple table, we have to use the join. And we know there are two kinds of join operation. One is called the inner join, another is outer join. So we have to compare all these two kinds of join operations. But before that, see, if we have a table A and we have a table B, so the tuples are combined like such case, table A after that table B, then we have to use the set union operation, right? Now, if we have to combine the data using table A, then after that table B, then that kind of combining of data is called the horizontal combining the data. So we have to use in this case join operation, right? So there are two kind of join, one is inner and outer join. So in case of the inner join, only match the when we join two table A and table B, then only match tuples are extracted or match in the resultant table. So we have to join maximum 256 table at the same time when we use the inner join. That means only matched entity. How we can say matched? See, see already I have created one table that is 1. So select star from 1. See, we have entry like we have two attribute in that. One is x, another is a. X having some values, a having some values, right? So over there are 7 entries. Similarly, we have another table that is 2. So select star from 2. There are two tables we have seen, right? So another table contain only 4 entries, right? 1, 2, 3, 4. 4 entries. Here we have 7 entries, right? Now, to join it, basically joining means combining the data horizontally, right? So the basic operation for combining the data horizontally is called the Cartesian product. In that case, there is no conditional statement. So we have to write here, select star from table 1 and table 2. There are two tables, so 1 and 2 are joined using the a simple see here. So here we have 28 rows selected. 28 rows, that means each entry of first table is paired with the every entry of B table, it means second table. Each entry of first table, that is one table, is paired with every tuple of second table. So see here, 1A is now combined with all the tuples of the two tables. So 1A, 2B1, 1, right? So see here, all these 1A, 1. Simply, so you have to see here, all the entries are there in that, right? So you can say, when we talk about a simple entry or simple combining of data, then we have to see, we call it as a Cartesian product. And Cartesian product is represented using the syntax select star from table 1, table 2, table 1, table 2. You can here combine up to n number of tables, maximum 256, right? Select star from table 1, table 2, table 3 up to so on table n. So here we have to do the Cartesian product. Now see what is the process in that. That means हमने अभी बताया कि फर्स्ट टेबल का जो टपल है वो हर टपल से दूसरी टेबल के हर टपल से मैच करेगा. जैसे हमने कहा कि पहले आया कि फर्स्ट टपल 1a now match with the 2x 1a 2x. Now second time it will match with the 3y. Third time it will match with the 5y. Similarly now second जब ये पहला टपल सारे टपल से मैच कर गया, अब की बार क्या होगा, दूसरा टपल सारे के साथ मैच करेगा, right? So in that case
अब की बार क्या हुआ 4d with 2x, then 4d with 3y, then 4d with 5y, then 2b with 2x, then 2b with 3y, then 2b with 5y. So you have seen every tuple of first table is paired with the every tuple of second table, and we can get resultant. If this table having m in tuple, this table having n tuple, then the Cartesian product table will be m cross n tuple. So see here all these tuples. So here we have a 3 rows, here we have a 3 rows, then we have a 9 rows in that, right? So अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें, अभी तो 3 टपल थे, तब हमारी 9 एंट्रीज आई। अगर हम 1000 एंट्री लेते 1000, तो दूसरे में ही 1000 होती, तो हमारे पास आ जाती 10 टू पावर 6। अगर 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर 6 की बात करते, ठीक है, तो 10 टू पावर 12 आ जाते हैं। सो इन दैट केस यू हैव सीन we can, when we do the Cartesian product, there may exist some of the tuple which are irrelevant. We need only the desired result. So in that case, we have to provide the condition. And once we provide the condition, that case we have to use the join operation. So what is join operation? So we move to the join. So there are two kinds of join we have already discussed. One is called the inner join, another is called the outer join. So in a case of the inner join, that means only the matched tuple are combined together in resultant table. Only matched tuple. So match किस बिहाफ पे होंगे? मैच होंगे किसी ना किसी एक एट्रीब्यूट के बिहाफ पर, राइट? सो वी हैव some kind of inner join, like one of the inner join, the syntax is just simple. We select all, we have to select the column, or we can do the star here from table 1, table 2 up to so on table n, where we have to write the join condition, and we have to also combine with some subset conditions, and there may be any other clause. So this is a syntax for the inner join. Now when we talk to this, so we have to write inner join operation or simply join operation. We can say here we have to see select star from, and now we have to take two tables. So table 1 is there, then table 2 is there, right? Till now we have a Cartesian product, but for any joining we have to write the conditional statement. So we have to write where condition. Condition क्या होगी? किस यहाँ पर we have to combine these tuples, combining on based on the common values. So common value in under the x. X is there, a1, a2, a3. Similarly, in the second table, x is there. So we have to write 1 dot x equaling to 2 dot x. See here, what will happen? See here, only the matched tuple are combined together. See here, x की वैल्यू 2 थी, तो x की दूसरे में भी अगर 2 होगी तो ही कंबाइन होगी। 2 with a3, 2 with b1, 3 with 3 देखिए b2, 3 with a4, 3 with b2, 4 with a2, 4 with b3, 4 with a4, 4 with b3, right? So see here, all 2 a3 and इसके साथ 2, तो 1 2 a3, 2 b1, 2 a3, 2 b2। देखिए यहाँ 3 कंबाइन हो रहा है, 3 a3 यहाँ पे है, 3 a3 देन 3 b2, 3 a4 देन 3 b4। यहाँ पे एक ही बार आ रहा है 4 a4 एंड 4 a3। सो टोटल कितने आ गए? टोटल 6 टपल्स आ गए, 2 3 and 4, right? So this is the way we can combine the two tables. But see here, we are not using any join keyword. So when we use the join keyword, we have to write in between two tables. So we have to join. So here we have to write join. So join with 1 with 2, 1 with 2. And now when we use the keyword join, at that time we have to write in place of where we have to write on clause. On clause is used when we write a join operation, right? So in that case, see here again the same thing is there, but in the case here we are using the join operation, join between two tables, one join two. So
we have to write the condition is 1 dot x equivalent to 2 dot x. बात क्लियर होगी कि जब भी ज्वाइन ऑपरेशन यूज करेंगे उसके लिए जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसमें हम क्या लिखेंगे, ऑन। क्लियर हो रही ना ये बात कि ज्वाइन के साथ कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, ऑन। नाउ सिमिलरली, so you have seen one of the join, and here we are using what, we are using the conditional statement that is equivalent. So that's why this join is also called the equijoin. If we are using C like this, greater than equivalent to 2, here again we have to combine the value of x of first table is greater than equivalent to value of x of the second table. So again in that case we have to combine all with that. Condition is satisfied in that, right? If we use the natural join, right? In case of the natural join, natural join is just performed when one of the attributes domain and the name must be common in the both tables, right? So we write select star from one natural join 2. Here we are just using the natural join 1, natural join 2. What will happen? There is no condition in that because it will only check for a common attribute in both the tables. So in that case, here x is common in both the table. Over that we have to combine all the tuples and see here only as per the earlier we have 6, like in that we have 6 rows selected. Same case natural join में भी यही होगा, लेकिन इस केस में क्या होना चाहिए, आपका एक ना एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए, तभी हम नेचुरल जॉइन को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि हाउ वी कैन डू द नेचुरल जॉइन और कब करेंगे और कब हम करेंगे इक्विजॉइन या थीटा जॉइन। यहाँ पे इस केस को हम कहते हैं थीटा जॉइन, और अगर हमारे यहाँ इक्विवेलेंट होता जैसे यहाँ तो इस केस को क्या कहेंगे हम, इक्विजॉइन, राइट। सिमिलरली सी हियर और भी कंडीशन लगा के देखते हैं, इसको हटा देते हैं। सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1 dot x not equivalent to 2 dot x, so this is a sign for not equivalent to, right? Similarly देखिए 1 का 2 के साथ मैच हो रहा है, 1 का 2 के साथ, मतलब 1 का 1 के साथ मैच नहीं होगा, ठीक है, 2 का 2 के साथ मैच नहीं होगा, 3 का 3 के साथ मैच नहीं होगा और 4 का 4 के साथ, ठीक है, ये है 2। One of the join here we have called self join. In a self join, see, self join is basically when a table is joined with itself, then it is called self join. Clear हो रही है बात? A table or relation when joined with itself, then it is called the self join. Like if we say about, if we join these two tables, one joined with one joined with one, then we have to write the condition. So where किस बेहाफ पे ज्वाइन करें, दैट मीन्स हमारे जो ज्वाइन की कंडीशन होती है कि कोई ना कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू का डोमेन सेम हो तभी हम ज्वाइन कर सकते हैं। अब वन ज्वाइन विद वन, so we have to check which condition we have to apply. So here we have to aliasing the name of the table, that one is like f and one the second table जो हम ज्वाइन कर रहे हैं उसको like s, where f dot x is equivalent to s dot x. See again, so one is the table, first table is joined with itself, so here we have taken one as f and one as s means second, so xa with the xa is there, so we have to see all entry respect to each other, right? So we have to see all there, right? So in that case s dot x equivalent to s dot x, so here we are, ठीक है, बात समझ में आ रही?
self join is how we can say. Now, right. So see, we have a table, that is employee table is there, and in this table we have some values of employee, right? And what are the entries in that? We have a first name, middle initial, last name, SSN, birth date, address, right? Sex, salary, super SSN and department, right? तो आप मुझे एक प्रॉब्लम करके दिखाइए सभी लोग. Find out name of supervisor, of each employee. Name of supervisor of each employee. ये आप लोग करके दिखाएं सभी लोग. Find out the name of supervisor of each employee. सभी लोग क्वेश्चन सभी ने लिख लिया है? Do it and submit it. Attendance will be marked on the basis of your attendance submission of this query. Find out नेम ऑफ सुपरवाइजर ऑफ ईच एम्प्लॉय, यानी कि आपकी जो एंट्री बनेगी यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद सुपरवाइजर नेम आना चाहिए, ठीक है. क्लियर हो रही है? इस तरह से एम्प्लॉय, जैसे हमारी टेबल में सपोज राहुल है, ठीक है, तो राहुल का कौन सा सुपरवाइजर है? सपोज राहुल का सुपरवाइजर 56875 56875 किसका आईडी है? मोहित का, राइट. तो यहाँ पे मोहित आना चाहिए, ठीक है. और जैसे राम है, राम के लिए सुपरवाइजर का नाम भी राम है, ठीक है. ये एंट्रीज आपको प्लॉट करनी है, ठीक है. बताइए कैसे करेंगे सभी लोग. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, ठीक है. एक एक करके मैं सभी का देखता हूँ. फाइंड आउट द नेम ऑफ सुपरवाइजर ऑफ ईच एम्प्लॉय. क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया? क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया है? यस सर. हेलो, करिए सभी लोग, बताइए क्या होगी क्वेरी.
अनुराग श्रीवास्तव। देखो अम्बेश, मैं तुम्हें डेली कहता हूँ कि तुम लेट ज्वाइन करते हो, देखो आज भी तुम 12-1 बजे ही ज्वाइन किए हो। आदित्य कुमार रोल नंबर 14। आदित्य कुमार नहीं है। अक्षत गुप्ता। रोल नंबर 15 सर, प्रेजेंट। हाँ 15 तो प्रेजेंट हो। यस सर। 14 की बात कर रहा हूँ। अक्षय गुप्ता। अक्षय शर्मा। आनंद चौधरी। अंकुर त्यागी। यस सर। अंकुर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन लेट हुआ है। हुआ नहीं सर अभी। अभी हुआ नहीं है। नो सर। चलो अटेंडेंस नहीं लग पा रही है तुम्हारी। यस सर, अब इस कराता हूँ। ठीक है, कोई नहीं, तुम क्लास करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखेंगे। अंशुल भारद्वाज। अनुराग चौरसिया। अनुष्का अग्रवाल। अर्जुन चौधरी। अवनीश पांडे। अवनीश पांडे। अवनीश पांडे। सर एक बार टेबल दिखा दीजिए। टेबल तो बेटा वही है जो पहले बनी हुई है। सर See here, table is this: first name, middle initial, SSN birth date, address, sex, salary, super SSN, and D number. राइट, ये वाली वैल्यूज हैं। अब आपको हमने पूछा है कि यू हैव टू फाइंड द सुपरवाइजर नेम ऑफ ईच एम्प्लॉय। क्लियर हो रही ना बात? क्या हमें निकालना है? सुपरवाइजर नेम। तो वो कैसे निकलेगा वो आप मुझे बताएंगे। पहले एक बार आप लोग दीजिए, फिर मैं मानस सिन्हा। मानस। प्रशांत चौधरी। रंजना। चलिए
किसी ने अभी तक फॉरवर्ड की? नहीं। बताएं, किसी ने लिखा अभी तक? एक एक करके सभी लोग शो करिए क्या क्या करा अभी तक। आदित्य, आदित्य प्रकाश, यस सर। मी योर एसक्यूएल स्टेट। सर अभी किया नहीं सर, नहीं हो पाया कर क्या रहे थे? सर। कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा लिखा हो। सर, क्या लिखा तुमने अब तक? सर लिखा था सेलेक्ट एम्प्लॉय, सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, और उसके बाद फिर सर उसको ज्वाइन कर रहा था सुपरवाइजर नेम के साथ, ऐसा कुछ डिपार्टमेंट में। देखो, हमें ये चीजें चाहिए थी, एम्प्लॉय नेम चाहिए और सुपरवाइजर नेम चाहिए। ठीक है, एक टेबल आपकी इस तरह से आए जिसमें राहुल करके मोहित आ रहा है, जो राहुल का सुपरवाइजर मोहित है, राम का सुपरवाइजर राम है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमें ये चाहिए, तो तुमने केवल फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा है, यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंबाइन कर रहे हो तुम। सर नहीं हो पाया सर। नहीं। और किसी ने किया? आकाश कुमार, आकाश, क्या किया तुमने अब तक, बताओ। सेंड करते हैं जो ट्राई की। हाँ, तो सेंड कर रहे हैं। कर दो, इसी पे कर दो, चैट में। आकाश, तुमने भेजा है? यस सर। आपने क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब सेल्फ ज्वाइनिंग क्लियर नहीं हो रही है, ये कैसे? यस सर। और कोई? आयुषी, आयुषी को सर नहीं हुआ, ट्राई कर रही हूँ। थोड़ा तो जो लिखा हो वो दिखाओ कि क्या लिख रहे हो। तो मैंने तो बस वो किया था कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करके, सेल्फ ज्वाइनिंग का थोड़ा कंफ्यूजन है कि उसको कैसे करना है। ज्वाइन तो देखो, जब भी ज्वाइन कीवर्ड यूज होना तो वो तो फ्रॉम क्लॉज के अंदर आएगा। आकाश, जो तुमने ज्वाइन हम लिखा है वो सेलेक्ट क्लॉज के अंदर, देखिए तीनों क्लॉज अलग अलग है। सेलेक्ट मीन जो चीजें आपको सेलेक्ट करनी है, फ्रॉम कहां से करनी है, वेयर कंडीशन लगानी है, ठीक है, यही तो करना है। तो हम इन्हीं को फिर से लिखते हैं। देखो, और किसी ने किया हो तो बताएं। किसने और किया होगा? अमन, अमन, सर नहीं हो पाया सर। ये नहीं हो रहा, चलो कोई और, हाँ सही नहीं आ रहा है। चलिए, आकांक्षा, सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम एम्प्लॉय। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें दो लोगों की चाहिए, फर्स्ट नेम एम्प्लॉय का भी और फर्स्ट नेम सुपरवाइजर का भी। आकांक्षा, तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि दो बार एंट्री आए। तो हमने जब बताया था ना, ऐसे केस के लिए हमें क्या करना होता, हमें अपने टेबल को रीनेम कर लेना होता है। कि टेबल को रीनेम कैसे करते हैं ये हमने बताया हुआ है। जैसे अब हमें इसी क्वेरी को लिखते हैं तो हम लिखेंगे सेलेक्ट। अब हमें क्या सेलेक्ट करना है मैं बाद में बताता हूँ, बट फ्रॉम किससे, क्योंकि देखिए हमें एम्प्लॉय की जो टेबल दी गई है उसी एम्प्लॉय की टेबल से हमें निकालना है। ठीक है, अगर आप इस टेबल को बहुत करें यहाँ पर, तो देखिए ये जो एम्प्लॉय की टेबल थी जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम एसएसएन बर्थडे एड्रेस एक्स सैलरी सुपर एसएसएन एंड डी नंबर दिया हुआ है। तो राम के शर्मा, उनका एसएसएन नंबर ये है, बर्थ डेट ये है, एड्रेस ये है,
और ये मेल है, सैलरी इतनी है और इनके सुपर एसेसन का नाम नंबर है 1 2 3 4 5, यानी कि इस नंबर पे जो नाम एग्जिस्ट कर रहा है वो ही उसका क्या होगा, सुपरवाइजर होगा। क्लियर? जैसे आप मोहित है, मोहित एस कुशबा, इसका जो सुपरवाइजर का नंबर है वो 1 2 3 4 5 है, यानी 1 2 3 4 5 किसका नंबर है, 1 2 3 4 5 राम का नंबर, यानी मोहित का भी सुपरवाइजर कौन है, राम। ऐसे ही शुभ पी सिंह के लिए भी देखिए सुपरवाइजर का नाम क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 में कौन है, राम। यानी कि हमें इस तरह से मैच करना, यानी कि इसी टेबल में ही मैच कराना है। ठीक है, तो बात आती है सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय की थी, फ्रॉम कहां से हमें सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय। अब ये एम्प्लॉय को किसके साथ आपको ज्वाइन करना है, सेल्फ ज्वाइन होना है, तो हमें इसका एक कंस्ट्रक्ट बना लेना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय एज इवन, कि एम्प्लॉय हमारा इवन हो गया। ठीक है, अब दूसरा कौन सा इसी टेबल के साथ करना है, तो इसका दूसरा हमने नाम दे दिया E2, राइट, दो नाम दे दिए। ठीक है, वेयर कंडीशन आपने पता ही लग गया कि जो एम्प्लॉय का जो क्या नाम है E2.SSN मींस जो भी टेबल मान लें 1 और 2 1 2 1, तो उसका क्या मैच होना चाहिए कि हमें एसएसएन नंबर निकालने हैं, तो जो सुपर एसएसएन नंबर हैं ये किसके हैं, आप जान लीजिए, चाहे E1 के मान लीजिए चाहे E2, लेकिन दूसरी टेबल के एसएसएन से मैच करने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि वेयर E1.SSN, यानी कि हमें करना क्या, E2.SSN सुपर, E2 को क्या मान लिया, सुपर एसएसएन। ठीक है, SUPER_SSN इक्वलेंट टू E1.SSN। ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉय का जो नंबर है अगर उसके सुपर एसएसएन नंबर मिल गया तो हमारे E2 क्या हो गए, सुपरवाइजर नेम हो गए। तो यहाँ पे देखिए E2 डॉट फर्स्ट नेम, उसका फर्स्ट नेम निकाल दे रहे हैं एज सुपरवाइजर नेम, और दूसरा निकाल रहे हैं E1 डॉट फर्स्ट नेम एज एम्प्लॉय नेम। ठीक है, करके देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, एम्प्लॉय के सुपरवाइजर नाम निकल के आ गए, राम राम, मोहित का राम, शुभ का राम, राहुल का मोहित, जो आपने यहाँ पे अभी देख रहे थे टेबल में। तो राम, इसका सुपरवाइजर 1 2 3 4 5 है, तो यही आएगा राम। मोहित का सुपरवाइजर 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 पे किसका है, राम का नाम है। ठीक है, शुभ का भी सुपरवाइजर 1 2 3 4 5 है, उस पर किसका नाम है, राम का नाम है। ऐसे ही राहुल का सुपरवाइजर नेम क्या है, 5 6 8 7 5 है, 5 6 8 7 5 किसका नंबर है, मोहित का है। ठीक है, अब यहाँ देखो गीता, गीता क्या सुपरवाइजर एसएसएन क्या है, नल है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। मीनू का कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यू हैव सीन कि हाउ टू फाइंड, ठीक है, कि ई नेम, कि कौन से हमारे जो एम्प्लॉई है
उनके क्या क्या सुपरवाइजर है, ठीक है। जिसका सुपरवाइजर नहीं है तो नहीं आया। बात क्लियर हो रही है कि कैसे हमने एक ही टेबल के अंदर उनको ज्वाइन किया हुआ है, राइट। तो हमें फाइंड आउट करना था कि एम्प्लॉय जो हैं, लेट वी हैव टू देखो ज्वाइन करना था, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन होना था दो टेबल के बीच में, तो उनको हमने रीनेम कर लिया। पहली टेबल को E1 मान लिया, दूसरी टेबल को E2 मान लिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, E2 का जो हमने कहा सुपरवाइजर ने, सुपरवाइजर एसएसएन, दूसरी टेबल का एसएसएन, मतलब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं ये वाला नंबर, ठीक है। और ये किससे चेक कर रहे हैं, एसएसएन से। एसएसएन ये जिसका होगा तो वो हमारा सुपरवाइजर होगा, ठीक है। तो हमने यही किया है कि E2 डॉट, इस टेबल को हमने लिया और उसके सुपर एसएसएन को चेक किया E1 के सुपर एसएसएन के साथ, ठीक है। तो E1 हमारा, E2 का जो फर्स्ट नेम होगा वो हमारा ई नेम होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, और जो E1 का हमारा फर्स्ट नेम होगा वो सुपरवाइजर नेम होगा। अगर आप यहाँ पर एक और चीज करना चाहते हैं, ठीक है, लास्ट नेम भी ऐड कराना चाहते हो, ठीक है, जस्ट नेट E2 डॉट लास्ट नेम, सिमिलरली यहाँ पे भी हम करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, E1 डॉट लास्ट नेम, ठीक है, करके देखते हैं, कंट्रोल एस एंड एग्जिट। सी है राम शर्मा, मोहित कुशवाहा, शुभ सिंह, राहुल सिंह। सी यार हमने क्या किया है, एक और कीवर्ड आपको मैं बता देता हूँ, ऑपरेटर, यहाँ पर ऑपरेटर का नाम था हियर। ये जो है पैरेलल लाइन, राइट, दिस इज यूज फॉर concatenation of the string. So first name यहाँ से आ गया और लास्ट नेम यहाँ से आ रहा है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो ये अगर इनमें गैप डालना हो तो यू हैव टू जस्ट अगेन यूज दिस, ठीक है। अब ये जब आप कर रहे हैं कि एक ये कैरेक्टर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे कंकेटनेट कर दीजिए और एक यहाँ कर दीजिए। सिमिलरली इसको भी कंकेटनेट करना, सॉरी, ठीक है, और वी हैव टू राइट इन बिटवीन वी हैव स्पेस, ठीक है। मैं कंट्रोल एस करके इसको बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो राम शर्मा, मोहित कुशवाहा, शुभ सिंह, राहुल सिंह, राम शर्मा, राम शर्मा, राम शर्मा एंड मोहित कुशवाहा, राइट। सो दीज आर द क्वेरी। सो दिस इज ए काइंड ऑफ ए सेल्फ ज्वाइन। ये बात सबको समझ में आ रही कि कैसे कर रहे हैं, कि वी हैव टू ज्वाइन one table with itself, then that kind of join is called the self join. क्लियर हो रहा है ये सभी को? नहीं आया तो पूछ लो अभी। Now we move to the next kind of join, that is called the outer join. So in case of the outer join, so all this is case of the inner join we have already discussed. Now in outer join we have seen, जब हम इनर ज्वाइन करते थे तो केवल मैचिंग रोज ही रिटर्न होती थी, मतलब इनर ज्वाइन ओनली रिटर्न द मैचिंग रोज बेस्ड ऑन द कंडीशन। बट व्हेन वी डू द आउटर ज्वाइन, इट नॉट ओनली ज्वाइन द मैचिंग टपल but also include the non-matching tuples. And how it will happen? So see here, there are three kind of join. We have seen left join, right join and full join. When we join two tables, let table 1, table 2 is there. So these matching tuples are joined. But if we are using the left outer join, so whatever the unmatched tuple of the first table or left table are also combined in the resultant table. Clear हो रही बात कि जो हमारे मैच टपल है वो तो होंगे ही होंगे, बट जो फर्स्ट टेबल यानी कि लेफ्ट साइड की जो टेबल है उसके वो सारे मैच अनमैच टपल भी कंबाइन होंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा कि राइट साइड की जो वैल्यूज होंगी वो हो जाएंगी नल। क्या हो जाएंगी? नल वैल्यू। व्हाइल इन द केस ऑफ राइट आउटर जॉइन में क्या होगा कि मैचिंग टपल्स तो कंबाइन होंगे ही होंगे, बट अब की बात क्या होगा, राइट साइड की सारी टपल्स आएंगे बट
उनके अगेंस्ट में लेफ्ट साइड की टेबल में नल वैल्यू होगा। फुल आउटर ज्वाइन में क्या होगा कि मैचिंग टपल तो होंगे ही होंगे कंबाइन, बट इसके अलावा लेफ्ट टेबल की भी सारी एंट्री होंगी, उसके अगेंस्ट में जो मैच नहीं कर रहे हैं राइट साइड की टेबल के वो क्या होंगे, नल। सिमिलरली राइट साइड के भी सारे अनमैच टपल कंबाइन होंगे, बट उनके अगेंस्ट में जो लेफ्ट साइड की टेबल है उसमें वैल्यू नल होगी, राइट। लाइक सी in this case we have a table 1 and table 2. See here, when we do the left join, so we are right select star from 1 left join 2, and here we write on 1 dot x means 1 dot x कौन सा मैचिंग क्राइटेरिया हमारा 1 dot x इक्वल टू 2 dot x। सी here, तो 1a इसकी की सारी एंट्रीज आएंगी, मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट टेबल की सारी एंट्री होंगी, बट अगेंस्ट द जिसमें कंबाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे 2b इज देयर, 2 इज देयर, 2 इज आल्सो प्रेजेंट हियर, सो 2b विद x, 2b विद 2x इज देयर, बट जो एंट्री जो मैच नहीं कर रही, 1 वाली मैच नहीं कर रही कहीं पे भी और 4 वाली भी कहीं नहीं कर रही, तो 1a और जो सेकंड टेबल की जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें क्या हो जाएगा, वहां पे नल हो जाएगा, राइट। so 1a null null, 4d null null। Similarly, अगर हम राइट ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा कि आपकी बार राइट साइड की सारी एंट्रीज तो आएंगी आएंगी, बट लेफ्ट साइड की केवल मैच्ड एंट्री आएंगी, बाकी जगह क्या हो जाएगा, नल वैल्यू। देखिए 1a जो किसी से मैच नहीं कर रहा है तो इसके अगेंस्ट में नल वैल्यूज आ रही हैं, 2b जो मैच कर रहा है तो 2x के साथ मैच हो रहा है, 2b 2x, बट 4d किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे नल आ जाएगा। सिमिलरली फुल आउटर ज्वाइन के केस में क्या होगा, दोनों ही टेबल की मैच्ड और अनमैच्ड एंट्रीज आएंगी, उस केस में होगा क्या, जिसकी मैच नहीं कर रही है उसके अगेंस्ट में नल वैल्यूज आएंगी। जैसे यहाँ पे देखिए 1a इसमें कोई भी नहीं है तो नल वैल्यू, 2b with 2x is there so 2x is there, 3y is there but no value of x and a for first table, 3 similarly 5 is there, 5b is there but no 5 in that so we have C. See here, this is all for the left join and right join and full join। सी एग्जांपल के तौर पे देखिए, हमने ऑलरेडी हमारे पास दो टेबल थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम 1, एक तो ये टेबल थी, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम 2, ठीक है, दो टेबल थी। अब मैचिंग की बात करते हैं, कौन सा कौन ज्वाइन लगाना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम 1 और नाउ हियर वी वांट लेफ्ट ज्वाइन किसके साथ, 2 के साथ। कंडीशन ऑन क्या है, 1 डॉट एक्स इक्वल टू 2 डॉट एक्स, राइट। सी है, सभी जो मैचिंग वाली वैल्यूज हैं वो तो मैच कर गई, जब 1 की बात आएगी 1 और 1 है ही नहीं यहाँ पर प्रेजेंट, तो यहाँ पे सारी वैल्यू नल हो गई। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट कर देते तो राइट टेबल के हिसाब से चलेगा, राइट टेबल की सारी मैच्ड एंड मैच्ड वैल्यू आएंगी। ठीक है, राइट टेबल में यही एंट्री थी, उसके करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यू आ गई। अगर यहीं पे हम फुल ज्वाइन कर देते तो हमारे पास क्या आ जाता, देखिए फुल आउटर ज्वाइन, सो सी हियर ऑल वैल्यूज आर देयर, सो जो मैच कर रही हैं वो तो ठीक है, जो अनमैच्ड है वहां पे नल वैल्यूज आर, राइट। सो दिस इज ऑल ओवर फॉर द ज्वाइन ऑपरेशन। तो ज्वाइन ऑपरेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया, नेचुरल ज्वाइन पढ़ लिया, सेल्फ ज्वाइन पढ़ लिया, इक्वी ज्वाइन पढ़ लिया, थीटा ज्वाइन पढ़ लिया, और आउटर ज्वाइन में कौन कौन से हैं, आउटर ज्वाइन में हमारे पास लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, राइट आउटर ज्वाइन है, और कौन सा है लास्ट हमारा है फुल आउटर, राइट, दैट्स करेक्ट। So these are the all join operations, right? Now to move next, सर we have टाइम हो गया। टाइम हो गया, चलिए फिर टाइम हो गया। अभी कोई और भी बढ़े हैं, कोई आया है एक्स्ट्रा अभी बाद में?